speed of A just after B hits the floor. B hits the floor and stops. Collision is inelastic. Immediately after B hits the floor, what is speed of block A? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन करेंगे जिसको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं माना जाना चाहिए। एक रूटीन सा क्वेश्चन है, पर देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। प्रॉब्लम को सुनने के बाद खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा सॉल्यूशन को देखने के पहले, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। आइए, आज का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। Two blocks A and B are connected to an ideal spring of force constant K. A and B are two blocks. They are connected to a spring of force constant K. Masses of the two blocks are M1 and M2. Mass of this block is M1 and mass of this block is M2. Initially, the system is kept vertical with spring relaxed and block B at a height h above the floor. This is the initial state. In this situation, the spring is relaxed. I am holding the system like this, and the spring is in relaxed state, and the lower block is at height h above the floor. Now I release this system from rest. Collision between B and floor is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. B collides with the floor and the collision is perfectly inelastic. Find minimum value of h for which B will again bounce off the floor. Find minimum value of h for which B will bounce off the floor. h की मिनिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए कोलिजन होने के बाद B वापस से ग्राउंड को छोड़ देगा। एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करें। यहाँ पे सबसे पहले बहुत से बच्चों को शायद ये कंफ्यूजन होगा, नहीं भी हो सकता है, पर बहुत से लोगों को होगा कि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन का मीनिंग है कि ब्लॉक बी ग्राउंड से चिपक ही गया। नहीं, ब्लॉक बी ग्राउंड से चिपका नहीं है। हाँ, कोलिजन के तुरंत बाद ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 है। मतलब ब्लॉक बी रुक गया, ठहर गया, पर वो स्टिक नहीं किया ग्राउंड से। उसको कोई ऊपर खींचे तो वापस ऊपर चल पड़ेगा, राइट। दो बॉल अगर आपस में टकरा गए और क्वेश्चन कहता है कि द कोलिजन इज इनइलास्टिक, इट डज नॉट मीन कि दोनों स्टिक कर गए। ना ना ना, ठीक है, उनके बीच रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। वो आपको साथ चलते हुए दिख सकते हैं, बट दे आर नॉट स्टिकिंग टू वन अनदर। अगर ये दोनों बॉल टकराने के बाद ऐसे जा रहे हैं, मैं पीछे से इसको होल्ड कर लूं तो ये रुक जाएगा, ये आगे चला जाएगा। सो दे आर नॉट स्टिकिंग एक्चुअली, राइट। How can we solve this question? First, as the system falls, it is actually having a free fall. This block as well as this block will fall down with same acceleration g. So when B is about to hit the ground, its speed will be under root 2gh. It is moving throughout with acceleration g. After falling through height capital H, its speed will be under root 2gh. Same will be the speed of block A. Till now, separation between A and B has not changed because both are experiencing free fall. Displacement of both the blocks will be same, and therefore there is no separation change between A and B. So the spring is still relaxed. Just before B hits the ground, spring is still relaxed, and speed of both the blocks A and B is under root 2gh, right? So speed of A just after B hits the floor. What am I saying? The speed of A just after B hits the floor. B hits the floor and stops. Collision is inelastic. Immediately after B hits the floor, what is speed of block A? It is still going down with speed u. This is spring. This is not a rod. It is spring, and separation between A and B cannot change instantaneously. So B suddenly comes to rest. Okay. But A is still moving down with same speed u. There is no abrupt impulsive force acting on A. There is an impulsive force applied by the ground on B, because of which B stops. But A has not experienced any such force,
and it is still moving with same velocity u, that is under root 2 gh. I'm so sorry, write it as capital H. Okay. So block A will now compress the spring, right? It will come to rest and then it will start climbing back again. So block B has stopped, block A is still going down, it is compressing the spring now, so it will compress the spring somewhat more, then A will come to rest. Now the spring is compressed, it will push the block up, so it will again start going up. Am I right? Are you understanding? I hope so. This is the situation. Block B has come to rest, block A is still moving down with speed u, so it is going to compress the spring. After some time this block is going to stop somewhere here. Now the spring is compressed and it will push back on block A, so it will start going up again. Okay, so block A compresses the spring and then moves up. Let it stretch the spring by x when it comes to rest. अब ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद जब वापस उठने लगा तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जहां पर जाके रुका उस समय स्प्रिंग x से स्ट्रेच हो चुकी है। ये ब्लॉक एक यहाँ पे कहीं जाके रुका और उस समय तक स्प्रिंग में x एक एक्सटेंशन आ चुका है, राइट? ये एक्सटेंशन x अगर सफिशिएंट है, सफिशिएंट मीन्स kx स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक के वेट के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो फिर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा और ये ब्लॉक जस्ट ग्राउंड को छोड़ देगा। तो एक क्रिटिकल केस की अगर हम बात करें कि जस्ट ये ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ देता है, उस केस में kx शुड बी इक्वल टू m2g। प्लीज़ ध्यान दीजिए, कोलिजन हुई, बी रुक गया, ए अभी भी चल रहा है नीचे, इसने उठा के कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को। अब स्प्रिंग ने इसको वापस ऊपर धकेला, ये ऊपर चल रहा है, यहाँ पहुँच के रुका। जब तक ये रुका उस समय तक स्प्रिंग x खींच चुकी है और स्प्रिंग का एक्सटेंशन ऐसा है कि k इंटू एक्स की वैल्यू इस ब्लॉक के वेट के ठीक बराबर या उससे बड़ी हो चुकी है, तो नेचुरली ये उठ जाएगा ना। अभी हम क्रिटिकल केस लेते हैं कि ये ठीक बराबर हो चुकी है, जस्ट वहां रुका जिससे कि स्प्रिंग फोर्स ने इसके वेट को बैलेंस कर दिया और ये जस्ट उचक गया। ऐसा सिचुएशन हम अगर अज्यूम करें तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। यहां से सोचना शुरू करते हैं, कोलिजन हो चुका, ये रुक चुका है, ये u स्पीड से चल रहा है। हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम? हाफ m1 u², ठीक है। उसके बाद ब्लॉक ए नीचे आया, ऊपर जा रहा है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ब्लॉक ए फाइनली यहां जाकर रुका। इस समय ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, यहां से x ऊपर जाके रुका, तो इस समय सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है? इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgx और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x²। ब्लॉक फाइनली रुक गया, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। अब हमें ये एज्यूम कर लेना है कि जो x है उसकी वैल्यू m2g/k है, जस्ट क्रिटिकल केस में कि ये ब्लॉक वहां रुका जहां पे इसने जस्ट ग्राउंड को छोड़ दिया। तो x की वैल्यू m2g/k और u की वैल्यू √2gh, u √2gh और x m2g/k, इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से हमें ये कैपिटल H की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, और मैं मानकर चल रहा हूं कि आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब ढूंढ लिया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।